प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कहा, कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा है। सोनिया राहुल पर कार्रवाई से आग बबूला कांग्रेस, देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मसूरी में बारिश के आसार, पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी, दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक, कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की भी सूचना। हेडलाइंस के बाद अब जानेंगे खबरों का विस्तार में। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां अशोकनगर पुलिस थाना क्षेत्र में कल एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे गोली मारी। पुलिस मुठभेड़ में उसे गोली लगी और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि न्यायिक जांच की आवश्यकता थी और वो भी हो रही है। KIMS अस्पताल का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि आरोपी की जानकारी की पुष्टि की जा रही है। वहीं बच्चे की हत्या की जांच CID को सौंप दी गई है और की जांच करने CID अधिकारी वाणिज्यिक शहर हुबली पहुंचे हैं। ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗುದು ನಿನ್ನೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶವ ತನಿಖೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಶವ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟು. ಈಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶವ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮೃತ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅವನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೊರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಪತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸಂಘರ್ಷ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗೊಂದಲ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಾದರೂ 3-4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ
ಯಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಪವೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಬಹುದು? ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮನ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ CIDಯಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು CID ಅವರು ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CID ಅವರ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ರಿಕ್ವಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೈಗೆತ್ಕೋತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಯಾರಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನೇನು ಬೇರೆ ವಿವರಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೂಲತಃ ಪಟ್ನಾ ಭಾಗದವನು ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೂ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತು ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ PM ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದಾಜು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां होटल में खाना बनाते वक्त लीकेज से सिलेंडर में आग लग गई। खाना पका रही बावर्ची ने आनन फानन में जलता सिलेंडर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंके गए सिलेंडर की आग से 3 बाइक और एक अन्य दुकान जलकर राख हो गए। ये आग कहाँ पर लगी है? ये आग एक होटल है, अजमेरी होटल के नाम से, किस जगह पर? बजरिया सैयद मोहम्मद में। कैसे आग लगी, क्या जानकारी मिली आपको? पता ये चला कि होटल के अंदर खाना बन रहा था तो उस सिलेंडर में आग लगी। जब उसमें आग लगी तो उस होटल वाले ने उस सिलेंडर को बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका तो उसकी जो लव ने प्रेशर मारा तो गई जल गई और लाखों का नुकसान हुआ। बगल में एक गोश्त की दुकान थी जिसका दरवाज़ा वगैरह बिजली विभाग पूरा मुस्तैद हो गया। तुरंत उन्होंने सामने मंजर आप दिखा। मौके पर पुलिस पहुंची है? बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारी जो हमारे क्षेत्र के चौकी साहब वो तुरंत मौके पर हाजिर हो। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AGL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी आज देश भर में ED दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक और कांग्रेस ने जहां इसे बदले की राजनीति बताई है, तो वहीं BJP का कहना है कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं।
तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। आई वुड लाइक टू रिपीट, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी काइंडली रिप्लाई, शुड द लॉ बी अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स और नॉट? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा। लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इस नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय में आपसे और कहना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। आई रिपीट, टुडे देयर आर सो मेनी न्यूज चैनल्स इन द कंट्री, so many newspapers in the country. All of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence leased to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है ना। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है। तो संजय बाबू, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने के तरीका। हाँ, क्यों, कोई शक नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग चलती है। हाँ, मतलब ये अंतिम बात मैं पीड़ा से कह रहा हूं, जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया।
चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक एटीएम बना दिया। लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का बीच में नाम है, किस तरह देखते हैं कि आज पूरे देश भर में इसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहा है? देखिए, लोग पागल हो गए दिखते हैं। दुनिया जानती है कि 90 साल पहले 1938 के अंदर मैंने आज़ादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था, नेत्र हेराल्ड शुरू किया था, और एक हिंदी का था, साथ में एक उर्दू का था, कि देशवासियों को बताने के लिए, आज़ादी जंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से कैसे हम मैसेज देवें देश को। तो ये जो स्थापना की गई थी उस वक्त ही कांग्रेस के माध्यम से संदेश देना था देशवासियों को आजादी की जंग में। गांधी जी का संदेश हो, पंडित नेहरू का हो या महापुरुषों का हो, तो स्थापना उसके लिए हुई। 50-60 साल बाद में ऐसी स्थिति आई, कभी ये अखबार बंद हो गया था 2008 के आसपास बंद हो गया, तो कांग्रेस का प्रयास था वापस शुरू करें, इसको वापस शुरू करें, और 90 करोड़ रुपए दे दिए लोन के रूप में एजीएल को, जो एसोसिएट जो इनका एसोसिएट कंपनी थी, जनरल लिमिटेड, एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड, 90 करोड़ दे दिए। 90 करोड़ में क्या लगभग 70 करोड़ तो दिए तनख्वाहों के लिए, कि जो बेचारे कर्मचारी लगे हुए थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली 8-10-15 साल से। मुझे मालूम है जयपुर का एक आदमी था, पता नहीं वो कहाँ है, भार्गव जी थे जो इसके संवाददाता थे, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी, बताते थे। तो तनख्वाह चुकवाने के लिए पैसे दिए गए लगभग 70 करोड़, और लगभग 20 करोड़ रुपए थे जो अन्य कामों के लिए, वापस मशीनरी और सब कुछ नया हो और कैसे ये वापस शुरू हो सके, प्रारंभ हो सके, वो प्रयास किए गए। और उसके लिए कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, कि प्रयास करें किसी रूप में चालू हो जाए, क्योंकि एजीएल पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो एक नया जो नई कंपनी बनी उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता और कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता। जो दोनों उसमें उद्देश्य है नई कंपनी के अंदर, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? एक नया रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं है, गया नहीं है। तो उसको लेके इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। इतनी संपत्ति है बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में उनकी है, अटैच की जा रही है। 600-700 करोड़ संपत्ति हैं, जैसे उन्होंने चुनाव के पहले किया था कि एआईसीसी के अकाउंट सब सीज कर दिए। ये डेमोक्रेसी की हत्या करने के काम करते हैं बार बार, तो ये इनका विश्वास था नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। इस प्रकार की जो इन्होंने अप्रोच रखी है वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। बल्कि एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब जगह ये इस प्रकार से हरकतें करते हैं, दबाव देते हैं अधिकारियों पर। अधिकारियों को मजबूरी में आकर के रेड करनी पड़ती है, और रेड जब करते हैं तो जो इनफॉर्मल बातें वो करते हैं, जहाँ रेड होती है वहाँ आप सोच नहीं सकते कि क्या वो कहते होंगे। तो ये स्थिति है, और ये केस इस प्रकार का बनाया गया है, ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कोई दम नहीं है। पूछताछ पहले हो चुकी है 3-3, 4-4 दिन तक, राहुल जी के साथ में भी, सोनिया जी के साथ में भी, ये सब मालूम इन लोगों को। और ये 5-7 साल तक तो चुप रहते हैं,
और जब मौका लगता है चुनाव आते हैं, चाहे बिहार क्या हो चाहे वो और कोई इश्यू बनते हों, महंगाई पे इनका ध्यान नहीं। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, उसकी चर्चा नहीं हो और कोई न कोई ऐसे केस करते जाओ तो देश उसी में उलझा रहे। ये जो इनकी हरकतें हैं, ये मैं समझता हूँ अगर किसी विश्वास लोकतंत्र में हो, वैसी हरकतें कभी नहीं कर सकता है, मेरा मानना है। कारण क्या लगता है आपको कि क्योंकि अब जो चुनाव भी आ रहे हैं, आपने कहा चुनाव आते करते करते कारण बड़ा कारण क्या लगता है? क्योंकि कल प्रताप सिंह खाचरियावास में अभी ईडी की रेड हुई, कि आपके जो बड़े लीडर्स है उनको चार्जशीट फाइल कर दी गई, तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद आपकी कुछ आप आरोप चारों ओर माहौल बनाना देश के अंदर। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जी को पहले बुलाया था कोई जमाने में, अब 10 साल बाद वालों बुला रहे हैं। तो ये जो एक साथ केस नहीं दे सकते थे, 6 महीने में, साल भर में केस डिस्पोज हो जाते। अगर आप ईमानदारी होती तो आप इतना 10 साल क्यों लगते हैं? और अभी लोकसभा में जो उत्तर आया है क्वेश्चन का, 290 के आसपास इन्होंने छापे डाले हैं, रेड करी है या केस बनाए हैं पॉलिटिशियन पर। 900 समथिंग थी, उसपे सिर्फ 2 केसेस प्रूव कर पाए ये लोग। 900 लगभग में से 200 केस, 2 केस ओनली। तो आप बता दीजिए कि 900 लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, चाहे वो उद्योगपति थे, छोटे थे, बड़े थे, पॉलिटिशियन थे अधिकांश तो, और सब लोग थे वो बीजेपी के आने से के थे नहीं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए जो गलती से फंस गए। जैसे कानपुर में हमने सुना, जाना था किसी के यहाँ, नाम एक कॉमन था, चले गए वो और किसी के यहाँ पर, वो उसका बैकग्राउंड बीजेपी का था। कुछ 250 करोड़ रुपए मिले मेरे ख्याल से वहां पर, ऐसा मुझे याद है। वापस मिल गए पैसे उसको, तो ऐसा सुना मैंने। क्या सच्चाई क्या हो तो हो जाने। तो ये इनकी हरकतें पूरा देश देख रहा है और इनको कभी माफ नहीं करेगा मुल्क, जब समय आएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल किए जाने पर भड़क उठे। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2014 से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र का आधार ही नष्ट हो जाएगा। ये तो साफ, ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र के जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहाँ है रूल ऑफ लॉ? अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया, जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से। वो जारी संपत्ति है, वो कंपनी की है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है,
इनका मकसद ये पहले भी कर चुके हैं कि नफरत फैलाओ। जो भी इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर केस करो, दंगे फसाद करो, दंगे फसाद करके फिर लोगों के ऊपर केस करो, एफआईआर लगा के ईडी भेज दो, ईडी किसी प्रदेश में भी चले जाए, एफआईआर करने के बाद वहां अरेस्ट शुरू कर दो। और अगर कोई सिविल सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट किसी विपक्ष के सरकार के नीचे काम कर रहा है, उसको धमकाओ और कोर्ट में जाकर ये कोशिश करो कि भाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला दे दे। और असलियत तो यह है, अगर कोर्ट देश की जनता के प्रति खड़ी नहीं होगी, उनके जो अधिकार है उनके प्रति खड़ी नहीं होगी, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ कोर्ट एटलीस्ट लोगों की सुनवाई नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने सारे मदरसे बंद करवा दिए उत्तर प्रदेश में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टे भी किया है, सब उन्होंने बंद करवा दिए। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये कभी ये वक्फ की बात करते हैं। देश के सामने कौन से मुद्दे हैं? देश के सामने मुद्दे हैं कि जो अपने जवान, अपनी बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, देश को आगे बढ़ाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो, लेकिन इनको केवल ईडी दिखती है। और उसे लोग कभी केरला के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रयास करते हैं, कभी उसकी परिवार के प्रयास करते हैं, कभी ममता जी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर को के खिलाफ केस करके हटवाना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र में इन्होंने किस तरह से सरकारें बदल दी। वो क्राइम नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है कि आप लोगों को आकर्षित करके, हम जानते हैं क्या होता है, उनको मंत्री बना दो और उससे पहले उनके खिलाफ बयान दो कि बड़े करप्ट हैं, फिर उन्हीं को मंत्री बना दो। हाँ, अपने पक्ष में लेकर वो सब बेदाग हो जाते हैं। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं आपको सच बात बताता हूं कि ऐसे ही देश चलता रहेगा ना तो कुछ रहेगा नहीं। आज के दिन क्या हो रहा है कि लोग डरे हुए हैं, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भय से रह रहे हैं यहाँ, क्योंकि मालूम है कि कुछ आवाज उठाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब इनके लोग हिंसा करते हैं तो कोई एफआईआर नहीं होती, और एफआईआर उनके ऊपर होती है जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके खिलाफ हिंसा हुई हो, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। बच्चे हमारे 5-5 साल से 4-4 साल से जेल में बह रहे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या ये मुद्दे हैं देश के सामने? वक्फ का मुद्दा हुआ, और क्या नफरत से ही राजनीति चलेगी? ये जो लोग अपने आप को कहते हैं ना हिंदू, ये हिंदू एक्चुअली इनको हिंदुइज्म का कुछ मालूम ही नहीं। हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, किस आधार पे जो धर्म मानता है उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इनको कुछ नहीं मालूम। अगर हिंसा करें और मेजॉरिटी के लोग करें तो कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। तो ये तो हो रहा है हमारे देश में, और मुझे ये नहीं समझ आई कि इनको क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है इनको गांधी फैमिली के साथ। इन्होंने सब कुछ तो अपने पक्ष में कर लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा बटोर लिया, सत्ता भी इनके पक्ष में है, इनके गवर्नर के इनके इशारे पे काम करते हैं, सीईसी भी इनके इशारे पे काम करती है, सब कुछ तो इनके पास है। अब ये लोगों को जेल भी भेजना चाहते हैं, यही दिखाने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो निश्चित रूप से यही आपका परिणाम होगा। सर, आपने तो यूपीए सरकार भी बहुत देखी है, उस वक्त के जो बीजेपी के बड़े लीडर्स थे उनको भी आपने देखा है। आपको लगता है ये नई तरीके की राजनीति शुरू हुई है पिछले कुछ वर्षों में? जो भाई ये जो गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको दोहरा रहे हैं, जो वहां कर रहे थे वो यहां कर रहे हैं, यही हो रहा है। ऐसा लगता है कि भाई लोगों के कोई हक ही खत्म हो गए, सब हक खत्म हो गए, कोई लोगों का कोई हक ही नहीं है। इनके कोई जर्नलिस्ट इनके खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ शुरू कर देंगे, कोई यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट चलाता है तो उसके खिलाफ शुरू कर देंगे, बच्चे एजिटेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो उसके खिलाफ कुछ कर देंगे, कोई आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो किस किस्म की राजनीति है?
इसीलिए संविधान बना था हमारा। अम्बेडकर जी के यही सपने थे, और ये बात अम्बेडकर जी की करते हैं, गांधी जी की करते हैं। उनके आदर्श के सामने को लेकर तो आगे बढ़ते नहीं है। बात करेंगे गांधी जी, काम करेंगे उल्टा। बात करेंगे संविधान की रक्षा की, और उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां डिब्रूगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य मंत्री संजीव गौंड को अस्पताल में सम्मान नहीं मिलने पर विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल के अनुसार स्वागत नहीं किया, जिससे वो भड़क गई और डॉक्टर को सुंदर जंगल में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। ये घटना उस समय की है जब राज्य मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हॉस्पिटल में आए और आप यहाँ की अव्यवस्था को देखकर डॉक्टर के ऊपर भड़के, क्या है मामला? देखिए, ओबरा विधानसभा में हमारा डिब्रूगंज में बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जिसको मैं अभी डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूं। हमें तो नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को अगर पता होता तो इनका बिहेवियर ठीक रहता जो है कि, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि जो भी स्वागत करना है, जो भी दिखाना है, अभी 20 किलोवाट का जो सोलर पैनल लगा हुआ था, काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, उसको ठीक करा करके लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको जो है कि किसी के सहयोग से उसको चालू कराने के लिए हमसे समय लिए थे। उसी के समय के निर्धारित समय पर आकर के उसको मतलब उद्घाटन करने का काम किए थे। और बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमने कहा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक ठाक होने चाहिए, क्योंकि ये इंटीरियर एरिया है, हमारे क्षेत्रों से, दूर क्षेत्रों से आते हैं गरीब इलाज कराने के लिए, ताकि उनको यहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सर, यहाँ असहाय और गरीब पेशेंट आते हैं और यहाँ के डॉक्टर्स को बाहर का रास्ता दिखाते थे, प्राइवेट मेडिकल का रास्ता दिखाते, क्या है ये? देखिए, गरीब लोगों को जो परेशान करेगा, कोई भी डॉक्टर हो, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर वह गरीबों को प्रताड़ित करेंगे किसी प्रकार से, उनका जो है कि, तो मैं प्रताड़ित करूंगा, उनको यहाँ नहीं रहने दूंगा। सर, आपने मकरा हॉस्पिटल के लिए बहुत आप गंभीरता से थे, आज वहाँ डॉक्टर नहीं आते, कंपाउंडर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। चलिए, अभी कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को बुलाए हैं और इस पर बैठ करके बात करेंगे, जहाँ भी कमियाँ होगा उसको दूर किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।